مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ داخلہ۔ نخلا سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نواحی علاقے کوہ حرا پر تشریف لے آئے اور یہیں پر مقیم ہو کر کفار مکہ کے بڑے سرداروں کے نام پیغام بھیجا، لیکن کسی نے بھی اپنی ضمانت پر آپ کو مکہ میں داخل کرانے کی ذمہ داری نہیں لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مطعم بن عدی کے پاس پہنچا تو اس نے عربی شرافت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے آپ کی ضمانت لی اور سیدھے کوہ حرا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لے آیا۔ مطعم کے بیٹے کھلی تلوار لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو مطعم کے بیٹے اسی طرح کھلی تلواروں کے سائے میں آپ کو اپنے مکان تک پہنچا آئے۔ کفار نے مطعم سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ؟ اس نے کہا کہ واسطہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں محمد کا حمایتی ہوں، اور جب تک وہ میری حمایت میں ہیں کوئی انہیں نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت دیکھ کر کفار کو حوصلہ نہ ہوا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ ملا پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ طائف سے مکہ واپسی والے واقعے کے بعد اسی سال سن 10 نبوی میں شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح کیا۔ اس طرح سن 10 نبوی تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کے حامل واقعات کا سال رہا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نکاح فرمائے، اسی میں طائف کا سفر فرمایا، اسی میں جنہوں نے آپ کی نبوت قبول کی اور بہت سے جن صحابی بنے، اور اسی سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ کفار نے اتنا تنگ کیا آپ کو، لیکن پھر چونکہ آپ کی ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقدر تھی، اس لیے آپ واپس آ گئے اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ یہی سال عام الحزن بھی کہلایا، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور آپ کے محسن چچا ابو طالب کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ اسراء و معراج، یہ وہ واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل واقعات میں سے ایک ہے۔ اسراء کا مطلب ہے رات کو لے جانا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ اس لیے علماء تفسیر کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہیں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، جس کا پہلا حصہ اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ معراج کہا جاتا ہے۔ دوسرے حصے کو معراج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ معراج کے معنی ہے چڑھنا، اور مسجد اقصی پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائے اعلیٰ کی طرف عروج اختیار کیا، جسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی زبان میں عرج بی سے تعبیر فرمایا تھا۔ اس مناسبت سے اسے معراج کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف عروج اختیار کیا تھا اور اسی سفر میں اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا۔ علماء و مفسرین کے مطابق سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ اسراء بیان کیا گیا ہے، یعنی عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے گھر سے شروع ہوا تھا۔ دراصل وہ شروع وہیں سے ہوا تھا، لیکن جیسا کہ اوپر بیان ہوا، مکہ سے مسجد اقصی کے سفر کو اسراء کہا گیا، اور اس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ پھر مسجد اقصی سے ملائے اعلیٰ کا سفر ہوا، جسے معراج کہا جاتا ہے، اس کا بیان سورہ نجم میں ہے۔ یہ معاملہ اختلافی ہے کہ معراج کس سال پیش آئی۔ امام طبری کے مطابق پہلی نبوی میں ہی پیش آ گئی تھی، اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیش آئی، اور کچھ روایتوں میں ایک سے زیادہ دفعہ پیش آنے کا ذکر ہے۔ ابن حزم کا قول ہے کہ 10 نبوی میں معراج ہوئی۔ اس واقعے کو ایک ڈاکیومنٹری کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ مشہور مورخ و جلیل القدر محدث حافظ عماد الدین بن کثیر کی رائے تمام حضرات سے الگ ہے اور یہی حقیقت کے سب سے قریب ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک ہی بار پیش آیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ معراج کی کوئی حقیقت ہوتی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت فرماتے اور راویان اسے روایت کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ عظیم واقعہ کس سن میں پیش آیا۔
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद और हिजरत से पहले पेश आया। खदीजा की वफ़ात सन 10 नबवी में हुई और हिजरत सन 13 नबवी में पेश आई। इस यातिबार से मियाराज का वक़ूअ सन 10 से 13 नबवी के दरमियान हुआ। महीने के मुतालिक भी मुफस्सिरीन का कौल है कि रजब का महीना था। इनमें इब्न अब्दुल बर, इमाम नववी और अब्दुल गनी मक़द्दिसी रहिमहुमुल्लाह शामिल हैं, और इनमें से अब्दुल गनी के मुताबिक रजब की 27 तारीख थी, जो कि मशहूर है। कुरान करीम की 2 सूरतों में इस वाक़ये को बयान किया गया है, सूरे बनी इसराइल और सूरे नजम। और जैसा कि ऊपर बयान हुआ, सूरे बनी इसराइल में इसरा का बयान है, यानी मस्जिद हराम, मक्का मुअज़्ज़मा से मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस तक के रात के वक्त होने वाले सफ़र का। और सूरे नजम में मियाराज का बयान है, यानी मस्जिद अक्सा से सिदराउल मुंतहा तक के सफ़र का। सूरा बनी इसराइल की इब्तिदाई आयात का तर्जुमा और मफहूम ये है, वो अल्लाह की ज़ात पाक है जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास के तमाम इलाके को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला देखने वाला है। मशहूर मुहद्दिस ज़रक़ानी रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि मेराज का वाक़या 45 सहाबा किराम से मरवी है। मेराज की तमाम तफसीलात का खुलासा इन किताबों से लिया गया है। बुखारी व मुस्लिम शरीफ, तफसीर इब्न कसीर, मारिफुल कुरान और कससुल कुरान इस हैरत अंगेज़ वाक़ये को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया। एक सुबह आप उठे और लोगों से इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता शब मेरे खुदा ने मुझको अपनी मुलाकात से नवाजा। पिछली रात जब मैं सो रहा था तो रात ही के एक हिस्से में जिब्राइल आए और मुझे उठाया। अभी मैं पूरी तरह जागा भी न था कि हरम काबा में पहुंचा दिया। वहां मुझे पूरी तरह बिदार करके मेरा सीना चाक करके धुया ताकि हक ताला शानहु से मुलाकात की मुनासिबत पैदा हो सके। फिर मुझे हरम के दरवाजे पर लाए। यहाँ जिब्राइल ने मेरे सामने खच्चर से छोटा एक जानवर बुराक पेश किया जो सफ़ेद रंग का था। जब मैं उस पर सवार हुआ तो उसकी रफ्तार का यह आलम था कि जहाँ देखता था वहीं उसके कदम पड़ते थे। देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस जा पहुँचे। वहाँ जिब्राइल के इशारे पर बुराक उस दरवाजे पर बांधी गई जहाँ अनबिया की सवारियां बंधा करती थीं। फिर मैं मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ और 2 रकात नमाज पढ़ी। अब यहाँ से सिदराउल मुंतहा तक जाने की तैयारियां शुरू हुईं, जो 7वें आसमान से भी ऊपर वो जगह है जहाँ हक ताला का अर्श कायम है। सफ़र से पहले जिब्राइल ने मेरे सामने 2 प्याले पेश किए। इनमें से एक खमर यानी शराब से बहरा हुआ था और दूसरा दूध से। मैंने दूध वाला प्याला कबूल कर लिया और शराब वाला छोड़ दिया। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि आपने दूध का प्याला इख्तियार करके दीन फितरत को कबूल कर लिया है। इसके बाद आगे का सफ़र शुरू हुआ। इसके आगे का वाक़या बुखारी व मुस्लिम की रवायत में इस तरह मौजूद है कि जब हम पहले आसमान पर पहुँचे तो जिब्राइल ने वहाँ के निगहबान फरिश्तों से दरवाज़ा खोलने को कहा। फरिश्ते ने पूछा कि कौन? जिब्राइल ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ। फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल ने जवाब दिया कि मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने पूछा कि किया? हक ताला का बुलावा है। जिब्राइल ने कहा कि बेशक। इस पर फरिश्तों ने दरवाज़ा खोल दिया और मुबारकबाद पेश की। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत जिब्राइल ने मुझसे कहा कि ये आपके वालिद आदम हैं, आप इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा, खुश आमदीद बरगज़ीदा बेटे और बरगज़ीदा नबी। वहां से हम दूसरे आसमान पर पहुंचे तो यहाँ भी पहले आसमान की तरह सवाल व जवाब के बाद दरवाजे में दाखिल हुए। यहाँ यहिया और ईसा अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्राइल ने उनका तारुफ कराया और कहा कि आप सलाम में पहल कीजिए। मैंने सलाम किया। उन दोनों ने जवाब देते हुए कहा, खुश आमदीद बरगज़ीदा भाई और बरगज़ीदा नबी। वहां से हम तीसरे आसमान पर पहुंचे तो यहाँ भी सवाल व जवाब के बाद दाखिला हुआ। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जिब्रील ने कहा कि सलाम में पहल कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने भी कहा, खुश आमदीद बरगज़ीदा भाई और बरगज़ीदा नबी।
इसी तरह चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सलाम कलाम हुआ। फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम से मिलकर चलने लगे तो उन्हें रोना आ गया। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया कि मुझे रशक हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरे बाद मबूस होने वाले नबी को अपनी हिकमत बालिगा से ये शरफ बख्शा कि उसकी उम्मत मेरी उम्मत के मुकाबले जन्नत से ज्यादा फैज़याब होगी। वहां से रुखसत होकर पिछले सवाल व जवाब से गुजरते हुए सातवें आसमान पर पहुंचे तो यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो बैतुल मामूर यानी अर्श के खंबे से टेक लगाए बैठे थे, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करने आते हैं। मैंने उनको भी सलाम किया तो उन्होंने भी सलाम का जवाब देते हुए कहा कि मुबारक हो मेरे बरगजीदा बेटे और बरगजीदा नबी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मकामात से भी आगे तशरीफ ले गए और एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां कलम तकदीर के लिखने की आवाज सुनाई दे रही थी। यहीं पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा, जिनके उस वक्त 600 बाजू थे, और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफरफ को देखा जिसने पूरे उफक को घेरा हुआ था। ये रफरफ एक सब्ज रंग की पालकी थी। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को भी देखा, जिसकी दीवार से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाए हुए दिखाई दिए थे और जिस बैतुल मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए दाखिल होते हैं, और जो फरिश्ता एक बार वहां इबादत कर लेता है क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। सिदरतुल मुंतहा क्या है? अब यहां से सिदरतुल मुंतहा का सफर शुरू हो रहा है तो मुनासिब है कि सिदरतुल मुंतहा का मुख्तसर तारुफ पेश कर दिया जाए। सिदरतुल मुंतहा के मुताल्लिक कुतुब तफासीर में मुख्तलिफ रवायात आई हैं, जिनका हासिल ये है कि इसकी जड़ें छठे आसमान पर हैं और इसकी शाखें सातवें आसमान से भी निकल गई हैं, और ये वो मकाम है जहां से चीजें जमीन पर उतरती और जमीन से ऊपर चढ़कर वहां तक पहुंचती हैं जहां तक उन्हें पहुंचना है। गोया ये चीजों के उतरने और चढ़ने के आपस में मिलने का मकाम है। इस मकाम से आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ना जिब्राइल अमीन का गुजर हुआ और ना दूसरे फरिश्तों का और ना ही किसी नबी मुरसल का। इसके बाद से सिदरतुल मुंतहा पहुंचने तक का सारा वाक़या जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़बानी बुखारी व मुस्लिम में इस तरह मौजूद है। आपने फरमाया कि तुम्हारी बोल चाल में सिदरतुल मुंतहा एक इंतहा की बीरी का दरख्त है, जिसके फल हिजर के मटकों के बराबर हैं। हिजर यमन के एक शहर का नाम है। फिर आपने फरमाया कि उस दरख्त यानी सिदरतुल मुंतहा के पत्ते हाथी के कानों की तरह चौड़े होते हैं। इन पर लातादाद फरिश्ते जुगनुओं की तरह जगमगा रहे थे, और हक ताला शानहू की खास तजल्ली ने उस दरख्त को दिलकश बना दिया था। फिर आपसे हक ताला का खिताब हुआ कि आज से तुम्हारे ऊपर इनाम के तौर पर रोजाना दिन और रात में 50 नमाजें फर्ज कर दी गई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख भी दिखाई गई। इन तमाम राज़ो नियाज के बाद जब आप नीचे उतरे तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी उम्मत इस भारी भरकम खिदमत को अंजाम नहीं दे पाएगी, इसलिए नमाजों की तादाद को कम करने की दरख्वास्त कीजिए। मैं आपसे पहले अपनी उम्मत को आजमा चुका हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वापस आया और दरख्वास्त की, जिस पर हक ताला ने 5 नमाजें कम कर दें। वापसी पर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले और फरमाया कि आपकी उम्मत से ये भी ना हो सकेगा और कम करवाइए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा कर दरख्वास्त करते रहे और नमाजें कम होती रहें, हत्ता कि 5 नमाजें बचीं जो आज हम अदा करते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इससे भी मुतमईन नहीं हुए और फरमाया कि आपकी उम्मत से ये भी नहीं हो सकेगा और कम करवाइए। तब मैंने अर्ज किया कि अब मुझे शर्म आती है कि इससे भी कम करवाऊं। मैं इस पर राजी हूं और इसी पर सरी नियाज खम करता हूं। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वहां से रुखसत होने लगे तो एक आवाज आई कि हमने अपना फर्ज लागू कर दिया और अपने बंदों के लिए कमी कर दी, लेकिन खुदा की मर्जी से फैसला हो चुका है, इसलिए जो इन 5 नमाजों को अदा करेगा उसे 50 नमाजों का ही सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रुखसत की अजीम शान मिसाल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आसमानी सफर से वापस बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा पर उतरे और जिन अनबिया अलैहिमुस्सलाम से मुख्तलिफ आसमानों पर मुलाकात हुई थी वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतरे, गोया रुखसत करने के लिए अदबा बैतुल मुक़द्दस तक आए, वैसे ही जैसे हम अपने खास मेहमानों को छोड़ने दरवाजे तक आते हैं। यहीं पर नमाज का वक्त हो जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ नमाज अदा की। आम एहतिमाल है कि ये नमाज उसी दिन की सुबह यानी फजर की नमाज थी। यहाँ से अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपने मकामात फाजला पर वापस तशरीफ ले गए। ऐसी शानदार रुखसत पूरी कायनात में न किसी को नसीब हुई थी और न ही हो पाएगी। वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। बकौल अल्लामा इब्न कसीर बाज़ हजरात का ख्याल है कि नमाज पढ़ाने वाला ये वाक़या आसमान पर जाने से पहले पेश आया, लेकिन जाहिर है कि अगर जाने से पहले ही ये वाक़या पेश आ जाता तो फिर जिब्राइल अमीन को आसमानों में तमाम अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से तारुफ की ज़रूरत पेश न आती, और फिर जो सफ़र जिस मकसद के लिए ख़ास था उसमें उसी काम का पहले होना ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है, यानी बारी ताला से मुलाकात, फिर असल काम से फरागत के बाद बैतुल मुक़द्दस तक रुखसत करने के लिए आते वक़्त जिब्राइल अमीन के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादत और सब पर फजीलत का अमली नमूना पेश किया गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस से दोबारा बुराक के ज़रिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए। मेराज के हक़ में गैर मुस्लिम की गवाही। ये वाक़या उस वक्त के रोमी बादशाह के दरबार का है। शाह रूम हरकल के पास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक पहुंचा था तो उसने उसकी तहकीक के लिए उस वक्त रोम में मौजूद अरबों को बुलवाया। इत्तिफाक से उस वक्त अबू सुफियान का तिजारती काफिला वहां मौजूद था। अबू सुफियान और उनके साथियों को हरकल के दरबार में लाया गया और हरकल ने उन लोगों से बहुत से सवालात किए। बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक इस तमाम वाक़ये का खुलासा इस तरह है। अबू सुफियान की दिली ख्वाहिश थी कि वो इस मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी बातें कहीं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीर व बेहूना जाहिर हो। उस वक्त तक अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, लेकिन ईमान लाने के बाद खुद उन्होंने बयान किया कि मैं खुलकर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था कि बाद में झूठा बन जाऊं और मेरे साथी हमेशा मुझे झूठा होने का ताना दें। इसलिए शाहरूम के दरबार में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर मियाराज का वाक़या बयान कर दूं, जिससे बादशाह खुद ही समझ लेगा कि ये बात झूठी है। इसलिए अबू सुफियान ने दरबार में इसरा का वाक़या बयान कर दिया। इसे सुनकर इलिया यानी बैतुल मुक़द्दस के सबसे बड़े आलिम ने, जो उस वक़्त बादशाह के सरहाने मौजूद था, कहा कि मैं उस रात से वाकिफ़ हूँ जिस रात ये वाक़या पेश आया था। बादशाह ने पूछा कि आपको कैसे मालूम? उसने कहा कि मेरी आदत थी कि मैं रात को मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे बंद किए बगैर नहीं सोता था, लेकिन उस रात सारे दरवाजे बंद करने के बाद जब उस दरवाजे को बंद करने पहुंचा तो वो मुझसे हिला भी नहीं। मैंने पूरे स्टाफ को बुलाया, लेकिन कोई उसे टस से मस नहीं कर सका। मैंने कारीगरों को बुलवाया, लेकिन उनसे भी कुछ ना हुआ, और उन्होंने कहा कि लगता है दरवाजे पर इमारत का बोझ आ गया है, अब सुबह से पहले कुछ होना मुमकिन नहीं। मजबूरन उस रात दरवाजे को खुला छोड़ देना पड़ा। सुबह सवेरे में दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे के पास एक पत्थर की चट्टान में रोजन यानी सुराख किया गया है। ऐसा लगता था कि यहाँ कोई जानवर बांधा गया हो। मैंने अपने साथियों से कहा कि ये दरवाज़ा अल्लाह ताला ने शायद इसलिए नहीं बंद होने दिया कि आज कोई नबी यहाँ आने वाले थे। फिर उस आलिम ने यह भी बयान किया कि उस रात अल्लाह के नबी ने यहाँ नमाज भी पढ़ी
और दीगर तफसील भी बयान की। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का सिद्दीक बनना। इब्न हशाम लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पर मक्का वालों को इसकी इत्तिला दी, तो मक्का वालों ने कहा कि एक काफिला 1 महीने में शाम तक पहुंचता है और 1 ही महीने में वापस आता है, और ये 1 ही रात में इतना लंबा सफर करके वापस भी आ गए। ये सुनकर बहुत से नौ मुस्लिम मुर्तद हो गए, यानी इस्लाम छोड़ दिया। लोग इकट्ठा होकर हजरत अबू बकर के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारे साथी का ख्याल है कि वो पिछली रात बैतुल मुक़द्दस गए, नमाज पढ़ी और उसी रात में वापस मक्का भी पहुंच गए। हजरत अबू बकर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। लोगों ने कहा कि नहीं, वो यानी मोहम्मद हरम शरीफ में बैठे बयान कर रहे हैं। इस पर हजरत अबू बकर ने कहा, अगर वो यानी मोहम्मद ऐसा कहते हैं तो फिर ठीक है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। उनके पास एक साथ में आसमान से जमीन पर वही आ जाती है। मैं उनकी बात की तस्दीक करता हूं। फिर हजरत अबू बकर वहां से हटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और लोगों की बात नकल करते हुए खिदमत अक़दस में अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, क्या आप ऐसा ऐसा वाक़या बयान करते हैं? आपने फरमाया, हाँ। इस पर हजरत अबू बकर ने फिर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे सामने भी बयान कर दीजिए। चुनांचे आपने वाक़या फिर से बयान करना शुरू किया। इस तरह के आप बयान करते जाते थे और हजरत अबू बकर कहते जाते थे कि सदक़ता, ए अल्लाह के रसूल, यानी ए अल्लाह के रसूल, आपने सच फरमाया। इसी वाक़ये के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक रख दिया, यानी तस्दीक करने वाला सच्चा इंसान। और यह तस्दीक एक ऐसे वाक़ये की थी जिसे सुनकर यकीन करना मुमकिन नहीं था, लेकिन सिद्दीक का कमाल ही यही था कि यकीन आए चाहे ना आए, तस्दीक करना ही है। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब।